Good morning student. Today I am going to start new topic, dragging layers between files. It means we can drag a layer from one file to another. Okay? It means we can drag a layer from a source file to destination file. Okay student? So let's come to the point. Let's the steps that we have to follow. Okay? In first step, open both the images file. Okay, so in first step you have to first open your both the image file. Okay, so after that, in next step, adjust the window sizes that you can conveniently see both file windows on the screen. Okay, it means like this. Okay, it means the both image file you have to adjust that you can easily see that on the screen. Okay student, so after that, make the source file active by clicking in it. Okay, it means in this topic we are dragging a file from source to destination. Okay, so first we have to active the source file by clicking on it. Okay, so this is our destination point and this is our source file. Okay, it means this is the final figure of it. Okay, it means here this is the second image and this is the first image, and the second image is dragged onto the first image. It means onto the destination layer. Okay students, so first you have to make sure that your source file will be active by clicking on it. Okay, so this is our source file. Okay, so first we have to active it by clicking on it. Next, open its layer palettes and select the required layer. Okay, so after that you have to open the layer palette related with it. Okay, and in this you have to select the required layer. Okay, this is the layer which gives information about it. Okay, so after that, drag the selected layer from the source file onto the destination file. Okay, so this is our destination file. Okay student, and this is our source file. Okay, so after that you have to drag this layer from source to destination point. Okay, next the layer will get copied to the destination file and a copy of dragged image will appear in it. It means when you drag this file, the layer will be copied to the destination file. यानी कि जैसे ही आपने उसे ड्रैग किया, सोर्स से डेस्टिनेशन पॉइंट पे आपने ड्रैग किया, तो आपकी इमेज क्या हो जाएगी, उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पॉइंट पे क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी एंड यू विल अपीयर ऑन इट. ओके, एंड सॉरी इट विल बी अपीयर ऑन द destination point. Okay, next step, select edit then free transform option to see the free transform border around the image. यानी कि जैसे कि आपने फोर्थ स्टेप में आपने अपने इमेज को कॉपीड किया सोर्स से डेस्टिनेशन पॉइंट में, देन आफ्टर दैट यू हैव टू गो टू एडिट ऑप्शन. एडिट ऑप्शन में आपको फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को चूज करना है. व्हेन यू क्लिक ऑन इट, द बॉर्डर अराउंड द इमेज विल गेट अपीयर. ओके, आपके इमेज की जो आपने इमेज ड्रैग की है, जो पर्टिकुलर लेयर की इमेज आपने ड्रैग की है, उसके सराउंडिंग में आपको बॉर्डर क्रिएट हो जाएगी. नेक्स्ट, ड्रैग द ट्रांसफॉर्मेशन हैंडल्स टू इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ इमेज एंड ऑल्सो यू कैन रोटेट द इमेज बाय यूजिंग द रोटेशन हैंडल. ओके, यानी कि नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, आप अपने इमेज के सराउंडिंग में जो आपको बॉर्डर्स हो रहे हैं, उन बॉर्डर्स से आप अपने इमेज की ट्रांसफॉर्मेशन हैंडल्स का यूज़ करके आप अपने एक पर्टिकुलर इमेज की साइज़ को एडजस्ट कर सकते हो. ओके, उसकी साइज़ को इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट टू रोटेट दिस देन यू कैन यूज रोटेशन हैंडल ऑल्सो. ओके, सो इन नेक्स्ट स्टेप, व्हेन इमेज बिकम्स ऑफ डिजायर्ड साइज, यानी कि जैसे ही आपने इमेज को एडजस्ट कर दिया, जब आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपकी इमेज सेट हो जाएगी, देन यू विल क्लिक ऑन ओके बटन डिस्प्लेड ऑन ऑप्शन बार. ओके, यानी कि जस्ट दैट पॉइंट. ओके,
यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, ऑप्शन बार अवेलेबल हो जाएगी एंड उस ऑप्शन बार पे आपको टिक ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, लाइक दिस, सी दैट दिस इज टाइटल बार एंड दिस इज मेन्यू बार एंड हेयर इट्स अपीयर द ऑप्शन बार, ओके, just below this bar. Okay, so in this you will get this point, so you have to click on it to set your image of desired size. In next step, save the image as .psd फाइल। नेक्स्ट आपने स्टेप्स कंप्लीट कर लिए, देन आपको अपने इमेज को सेव कर देनी है विद एक्सटेंशन .psd फाइल। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, दो पर्टिकुलर डिफरेंट इमेज को एक सिंगल इमेज के पर्टिकुलर स्क्रीन पे हम उन्हें क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, and one thing to remember is that the size of drag layer will change as per the resolution of the destination layer। यानी कि जो आपने इमेज ड्रैग की है उसकी जो भी रिजोल्यूशन होगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू डेस्टिनेशन लेयर। ओके, सपोज इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल दैट इफ़ यू आर ड्रैगिंग अ लेयर ऑफ रिजोल्यूशन 300 ppi, यानी कि अगर आप किसी ऐसी लेयर को ड्रैग कर रहे हो जिसकी रिजोल्यूशन 300 ppi है, विच हैज़ अ रिजोल्यूशन ऑफ ओनली 96 ppi, यानी कि दिस इज़ आवर सोर्स एंड दिस इज़ आवर डेस्टिनेशन पॉइंट। आपको जिस डेस्टिनेशन पॉइंट पे उसे ड्रैग करके सेट करनी है उसकी रिजोल्यूशन पॉइंट पावर आपको यहाँ पे शो की गई है। ओके, 96 ppi। सो द ड्रैग्ड लेयर विल अपीयर मच लार्जर इन साइज। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगी, आपने जो इमेज ड्रैग की है, जो लेयर ड्रैग की है, उसकी साइज़ क्या हो जाएगी, उसकी साइज़ लार्जर हो जाएगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेस्टिनेशन पॉइंट। ओके, ऑन रीचिंग टू द डेस्टिनेशन फाइल। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।